جی مدینہ، یہ مدنی چینل کے ناظرین سے یہ عرض کرنی تھی کہ کل جو آپ نے ایک واٹس ایپ نمبر دیا تھا اپلیکیشن کے حوالے سے، تو جس اسلامی بھائی کے پاس وہ موبائل ہے، وہ بیچارہ اتنا پریشان ہو گیا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ناظرین سے سوال کرتے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے جو جواب دینا تھا وہ سارے کے سارے میرے نمبر پر آ رہے ہیں، جو آپ نے واٹس ایپ نمبر دیا ہے جس پہ صرف اپلیکیشن کے حوالے سے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ شرعی مسائل بھی اس پہ پوچھے جا رہے ہیں. تو تھوڑا سا مدنی چینل کے ناظرین سے چلیں، اب آپ سوچ لیں آپ کا نمبر دیتے تو آپ کا کیا حال ہوتا. بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو نمبر آپ کو دیا گیا تھا اپلیکیشن میں جن کی انعامات نکل رہے ہیں صرف وہی لوگ رابطہ کریں. باقی مزید چیزوں کے لیے مدنی چینل کا نمبر ہے، آپ ادھر جواب دیجئے. اپلیکیشن کا جو نمبر دوبارہ چلا دیا جائے، وہ نمبر صرف اس پہ وہی لوگ رابطہ کریں جن کا انعام نکل آتا ہے. میرا انعام کیوں نہیں نکلا یہ اس کے لیے بھی نمبر نہیں ہے، انعام نکلنے کے بعد یہ نمبر ہے. ٹھیک ہے جناب، تو رنگ رضا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. اور اس میں آپ سے کچھ آیت بھی پوچھی جا سکتی ہے، حدیث کے ذریعے بھی شعر پوچھا جا سکتا ہے. بلکہ آج ماشاءاللہ ہم ایک اور تبدیلی لائے ہیں کہ آج اعلیٰ حضرت کی شاعری کی کچھ خوبصورتیاں پوچھی جائیں گی. رنگ رضا میں کچھ اور تبدیلی کی گئی ہے. تو کراچی مکی والوں سے سوال ہے کہ بتائیے کہ شعر جو ہے، میں پہلے شعر پڑھوں گا اور آپ نے اس میں صنعت بتانی ہے. اسی طرح کرنا ہے، ہم نے شعر سنانا ہے ان کو اور ان سے صنعت پوچھنی ہے. ٹھیک ہے. غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیر خار، کرنے کو گدگدی ابس آنے لگی بہائی کیوں. یعنی اب اس شعر میں کیا اعلیٰ حضرت نے صنعت کو استعمال کیا ہے، شاعری کی کون سی ایک شاندار ٹرمینالوجی یوز کی ہے، اور ذرا اس فن کی خوبصورتی بتائیے. اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے صنعت حسن تعلیل کا بڑا خوب مظاہرہ فرمایا ہے. اور صنعت حسن تعلیل اس صنعت کو کہتے ہیں کہ شاعر اپنے تخیل سے کسی امر یا چیز کی ایسی علت بیان کرے جو در حقیقت اس کی علت نہ ہو، یعنی کسی صفت کسی وصف کے لیے ایسی علت کا دعویٰ کرے جو حقیقی نہ ہو. اب ذرا مشکل الفاظ ہیں، میں اس کو آسان کر دیتا ہوں. پہلے تو اس شعر کو دوبارہ سنیے. غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیر خار، کرنے کو گدگدی ابس آنے لگی بہائی کیوں. اب یہاں مشکل الفاظ کے جو معنی پہلے سمجھ لیں. شیخ بوڑھے کو کہتے ہیں، شاب جوان کو کہتے ہیں، بہائی یعنی پڑی. اب اس شعر کا مطلب کیا بنا کہ اس شعر میں عوام کے ایک مشہور وسوسے، ایک مشہور جو کہیے کہ قول ہے، غلط خیال ہے، اس کا رد بھی ہو گیا کہ بچے اس لیے ہنستے ہیں کہ ان کو پریاں گدگداتی ہیں. اعلیٰ حضرت نے یہاں ایک نیا تخیل پیش کیا کہ جو جوان اور بوڑھے جو ہے نا غفلت کی نیند میں ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان پر شیر خوار بچے ہنس رہے ہیں، ان پر چھوٹے بچے ہنس رہے ہیں، دودھ پیتا بچہ ہنستا ہے. اور یہ تخیل دراصل امت کو غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے ایک مہذب طنز ہے کہ ایسے غفلت میں پڑے ہو کہ چھوٹے بچے تمہیں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، پریاں ان کو نہیں گدگدی کر رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ مسکرا رہے ہیں. تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو غفلت کی نیند سے بیدار فرمائے. اور یہ کمال ہے اعلیٰ حضرت کا، صنعت حسن تعلیل اسے کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ، بھاری ہے تیرا وقار آقا. بتائیے اعلیٰ حضرت نے اپنی شاعری میں اس شعر کے اندر کون سے شاعری کی وصف کو، شاعری کی صنعت کو استعمال کیا ہے. علم کا ذریعہ بنا اس کو جہاں کے واسطے. یہ صنعت تضاد اس میں اعلیٰ حضرت نے استعمال کی ہے. صنعت تضاد یہ ہوتی ہے کہ شاعر جو ہے اپنے شعر کے اندر دو الفاظ ذکر کرتا ہے جو وصف اور معنی میں ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، خواب وہ اسم ہو یا فعل ہو. کمال کی بات ہے. حالانکہ دیکھیے چند الفاظ پر مشتمل یہ شعر ہے. ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ، بھاری ہے تیرا وقار آقا. اب ذرا اس کو دونوں اگر کوئی لکھ لینا دونوں لائنوں کو، پھر سمجھیے کمال کیا ہے. ہلکا اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ بھاری. اگر یعنی ہمارا یہ جو کہنا ہے یہ اس کا یقین نہیں ہے. اگر ہمارا ہلکا پلہ ہے
मगर वहाँ हुजूर आपका जो वकार है ना वो भारी है, वहाँ अगर नहीं है वह कंफर्म है, अगर के मुकाबले में है, हल्का के मुकाबले में भारी। अच्छा हमारा है ना पल्ला, अब वकार किसका है? आपका, तुम्हारा। हमारे के मुकाबले में तुम्हारा, हमारा पल्ला हल्का है, आपका वकार भारी है। हर लफ्ज वस्फ में दूसरे की जिद बनता जा रहा है, और क्या शानदार अंदाज में सनत तजाद को यूज किया है। अब इस शेर को सुनेंगे तो ईमान ताज़ा होगा। बात भी बड़ी प्यारी की है, इल्तिजा भी है इसमें, अपनी यूँ कहते ना दरख्वास्त भी पेश कर दी है कि हुजूर गुनाहों की वजह से अगर नेकियों का पलड़ा हल्का भी है, गुलाम तो आपके हैं, उम्मती तो आपके हैं, आपका वकार इतना भारी है, काम हमारा बन जाएगा। अब ज़रा सुनो इस शेर को मेरे रज़ा के। हल्का है अगर हमारा पल्ला, भारी है तेरा वकार आका। सुभान अल्लाह। हल्का है अगर हमारा पल्ला, हाय हाय, हल्का है अगर हमारा पल्ला, हमारा या रसूल अल्लाह, पल्ला भारी है तेरा वकार आका, भारी है तेरा वकार आका। जनाब, असाए कलीम अजदहाए गजब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। बताइए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सनत या पस मंज़र। इसका सनद बताएंगे आप? आपके पास मदद का ऑप्शन है, 5 सेकंड रह गए। मदद लेंगे, यहां मौजूद किसी भी इस्लामी भाई से मदद ले सकते हैं अगर किसी को आता हो। सवाल यह है, असाए और कॉल भी कर सकते हैं, कॉल के ऑप्शन भी बता दीजिए, और यहां मौजूद किसी इस्लामी भाई से भी आप मदद ले सकते हैं। असाए कलीम अजदहाए गजब था, लेकिन याद रहे आप मदद की ऑप्शन तरफ चले जाएंगे, आप जवाब नहीं दे सकेंगे। अब जो जवाब वहां से आएगा वही जवाब माना जाएगा। जी, कॉल का ऑप्शन है हमारे पास आज। जी, यहां मौजूद कोई इस्लाम में मदद करना चाहें तो वो भी मदद कर सकते हैं, लेकिन यहां भी लगता है कि इस मौजू पर तैयारी नहीं है जनाब। आला हजरत की शायरी की क्या बात है, बड़े जिसको कहें कि अच्छे अच्छे जो हैं वो मुश्किल में आ जाते हैं। जनाब 4 ऑप्शन आ गए हैं, बताएं किसको कॉल करेंगे। अल्लाह करे वो कॉल पे मिल भी जाएं, आज बड़े दिनों बाद कॉल जाएगी। जी, असाए कलीम अजदहाए गजब था। जल्दी नाम सोचने में इतनी देर लगाएंगे तो फिर कैसे होगा। सलमान भाई, सलमान मदनी भाई से इंशाल्लाह बात कराई जाए। जब तक उन्हें कॉल मिलती है हम यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से कुछ अशार सुन लेते हैं। आप लोग तैयार हैं जनाब? सलमान मदनी भाई को कॉल मिलाई जाए, और उस दौरान जब तक हम यहाँ इसी कलाम का शेर सुनाएं। खुदा उसको किस शान से देखता है, खुदा उनको किस शान से देखता है। सैयदी आला हज़रत का ही बहुत खूबसूरत कलाम है, शेर मुकम्मल कीजिए। नाम भी बताएंगे, शेर भी बताएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद रेहान अत्तारी। जी रेहान भाई, कहाँ से आए हैं? कराची से। अच्छा, खुदा उनको किस चांद से देखता है, जो आंखें हैं महवे लिकाए जो मोहम्मद। आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुदा उनको किस शान से देखता है, जो आंखें लिकाए मोहम्मद, जो आंखें महवे लिकाए मोहम्मद। अब जरा इस शेर का माना समझें कि उन खुश नसीबों की आंखें जो नबी पाक के दीदार कर रही हैं। सहाबा किराम की तरफ भी ये इशारा हो सकता है, तो अल्लाह करीम उनसे किस कदर मोहब्बत फरमाता है, रहमत नाजिल फरमाता है। जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद, आका के दीदार में जो आंखें मसरूफ़ हैं, उन आंखों की क्या शान है। तोहफा दीजिए जनाब।
इंशाल्लाह इन्हें गिलाफ काबा का अस्तर मुबारक और मुतबरक पानियों का मजमुआ इंशाल्लाह पेश किया जाएगा। माशाअल्लाह। जनाब राब्ता हो गया सलमान भाई से तो बताइएगा। जनाब एक और शेर सुन लेते हैं। अच्छा एक और शेर सुनेंगे और ये शेर भी देखें यहाँ कौन सुनाता है, इसी कलाम का शेर है, बहुत खूबसूरत शेर है। ठीक है। दमे नज़आ जारी हो मेरी ज़बां पर, चले जनाब, दमे नज़आ जारी हो मेरी ज़बां पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद आदिल अत्तारी। जी। दमे नज़ आजारी हो मेरी ज़बां पर, मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद। मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इंशाल्लाह इन्हें मकतबतुल मदीना की बहुत ही प्यारी किताब सिरातुल जिनान मुफ्ती कासिम साहब की तहरीर करदा है। इंशाल्लाह इसकी ये तोहफे में दी जा रही है। 10 जिल्दें हैं इसकी, मकतबतुल मदीना से ये तलब की जा सकती है। 3980 रुपए की ये मकतबतुल मदीना से मुकम्मल 10 जिल्दें तलब की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब। क्या हमारा राब्ता हो गया? चले जनाब, राब्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसका मतलब तो किसी और इस्लाम से अगर राब्ता हो जाए तो करवा दें, वरना फिर हम मुकाबले को लेके आगे चलें। फिर इनकी ये गलती मान ली जाएगी। अगर राब्ता हो सकता है तो देख लें। एक और शेर की तरफ हम चलेंगे। जी आपको जवाब याद आ गया है कि आप जवाब दे देंगे? आप जवाब दे दें। इस सनअत को सनअत तलमीह कहते हैं और ये वो सनअत होती है कि शायर अपने कलाम में किसी वाक़ये की तरफ इशारा करे या कुरान पाक की किसी आयत या हदीस का वाक़ये की तरफ इशारा करे। आपने कहा सनत तलबी कॉल नहीं मिली, शायद अच्छा ही हुआ नहीं मिली। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कलाम में किसी किस्से की तरफ इशारा करना या किसी मशहूर शुअरा और कहावत या कुरान और हदीस के वाक़ये की तरफ इशारा करना। इस शेर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा मुबारक के अजदहा बन जाने के कुरानी वाक़ये की तरफ इशारा है, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा था वो अजदहा बन गया था। असाए कलीम अजदहाए गज़ब था, लेकिन फिर सामने बात क्या की आला हजरत ने, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। जवाब दुरुस्त दे दिया है। असाए कलीम अजदहाए गज़ब था और गिरों का सहारा असाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। अब सवाल है हैदराबाद वालों से। अल बहरु अला वल मौजु तगा, मन बेकसो तूफान होश रुबा। बताएं फन शायरी के मुताबिक इस शेर में किस सनअत का इस्तेमाल किया गया? इसमें सनत मुलम्मा बयान की गई है। सनत मुलम्मा ये होती है कि किसी एक ज़बान की, यानी मदद का ऑप्शन लेंगे अगर। अच्छा रुकते रुकते फिर मदद की तरफ चले गए हैं, लेकिन आज मददगार आपको यहीं से कोई मिल गया तो ठीक है। कॉल्स में कुछ प्रॉब्लम है। अब देखें यहाँ कोई अगर आपकी मदद कर दें तो ठीक है। सवाल मैं कर चुका था। अल बहरु अला बड़ा मशहूर कलाम है और वक्त भी आपके पास ख़त्म हो गया। आप अगर चाहें तो यहाँ मौजूद ना, लेकिन सनत का पता हो तो नातख़्वाह भी मदद करेंगे ना जनाब। यहाँ कोई मदद कर दें अगर मदद करना चाहते हैं, या फिर आप खुद जवाब दे दें। आप इसकी तारीफ क्या बयान कर रहे थे? तारीफ दोबारा बयान करें। सनत मुलम्मा यानी किसी एक ज़बान का शेर हो और उसमें दूसरी ज़बान का शेर मिला दिया जाए। तो यही आपका जवाब है या आप कुछ मदद की तरफ फिर क्यों चले गए थे? आपका जवाब आपने पहले ही दुरुस्त दे दिया है और आप जवाब दुरुस्त देकर पटरी से उतरने की कोशिश कर रहे हैं। सनत मुलम्मा ही इसको कहते हैं। इसको सनत तलमी भी कहते हैं कि एक ज़बान की नज़म में दूसरी ज़बान का एक मिसरा या शेर या अशार मिला दिए जाएं। आला हज़रत का इस कलाम में कमाल यह है कि 4 ज़बानों में ये नात लिखी। सुबहान अल्लाह। अल बहरु अला वल मौजु तगा, मन बेकसो तूफ़ान होश रुबा, मुझदार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया
पार लगा जाना। नाज़रीन, ये अगर इस शेर का मतलब भी समझे ना तो क्या कमाल की बात आला हज़रत ने की है। नबी पाक की बारगाह में इल्तिजा है, इस्तिगासा है कि हुजूर बहर जो है, तूफ़ान जो है, बड़ी बड़ी मौजें हैं और मैं अकेला हूँ, होश रुबा तूफ़ान में फंसा हुआ हूँ, मैं बुझधार में आ गया हूँ और हवा भी बिगड़ी हुई है, नैया कहीं टूट ना जाए, कश्ती कहीं डूब ना जाए। हुजूर निगाह करम फरमाएं और मेरी कश्ती किनारे लगा दें, पार लगा दें। क्या कलाम लिखा आला हज़रत ने, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल बहरु अला वल वाह वाह वाह। मौजूद गमन बेकसो तूफा होश रुबा मन बेकसो तूफा होश रुबा मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना मोरी नैया पार लगा जाना मोरी नैया पार लगा जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत सेगमेंट कंप्लीट हुआ। आला हजरत को जितना पढ़ें, जितना समझें, उनसे मोहब्बत और बढ़ जाती है। आइए चलेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें इस सेगमेंट के बाद क्या बता रहा है।